अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपने अतिथि, मैं हूं कविता। दोस्तों, आज हमारे साथ है वो युवा नव प्रवर्तक जिन्होंने तकनीक और देशभक्ति को मिलाकर नया रास्ता बनाया। अपोलोयन डायनेमिक्स के संस्थापक शौर्य चौधरी। उन्होंने अपने बैचमेट जयंत खत्री के साथ मिलकर ऐसे ड्रोन विकसित किए जो सीमा पार और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा और सहायता के नए विकल्प खोल रहे हैं। बिट्स पिलानी से पढ़ाई करते हुए और अपने साथी जयंत के साथ मिलकर देश के लिए काम आने वाले क्यूरेटिव ड्रोन विकसित किए, जिन्हें कामिकाजी ड्रोन के तौर पर जाना गया। आज हम जानेंगे उनके सफर, चुनौतियां, तकनीकी की कुछ बातें और भविष्य की योजनाएं। तो चलिए स्वागत करते हैं शौर्य चौधरी का। शौर्य, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग मैम, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। मेरा नाम है शौर्य चौधरी। मैं अपोलोयन डायनामिक्स का को-फाउंडर एंड सीटीओ हूँ। आई कम फ्रॉम कोलकाता एंड आई एम स्टडिंग electronics and instrumentation engineering at BITS Pilani, Hyderabad camp. So I started this venture back earlier this year with Jayant Khatri, who is the CEO and my co-founder. And we got into military drones as in हम लोग देश के लिए कुछ करना चाहते थे in the aftermath of the Pahalgam incident and subsequently Operation Sindoor. And we got our first shot at Chandi Mandir. We used to cold call a lot of army camps, and eventually one camp in Chandi Mandir, they gave us the opportunity to go showcase our drones. And they really liked our demonstration when we, flew it at showcase the full potential हमारे drones की. और हम jammers वगैरह के सामने टेस्ट किए। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर्स वगैरह आना शुरू हुआ और वहाँ से हम लोग अभी we are doing progressive R&D and we've come a long way and improving our drones and building a bigger line. तो आपने अपनी पढ़ाई के दौरान ये क्यूरेटिव ड्रोन विकसित किया जिसे कामिकाज ड्रोन के नाम पे जाना जाता है। ये आपको कैसे लगा कि आपको ड्रोन पर ही काम करना है? मैं बहुत दिन से ये ड्रोन्स प्लेन्स वगैरह में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। बचपन से ही I used to be into air modeling and stuff. And gradually I got into FPV drones, racing drones and all during my time in college. And eventually I thought of actually turning it into something productive that can actually help the country in some way. Building, instead of just being in drone racing and stuff, creating something that can be used for defending our borders. शौर्य, आप इंजीनियरिंग लाइन में हैं और अभी हाल ही में हमने इंजीनियर्स डे भी सेलिब्रेट किया है। आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं। मैं आपसे भूमिका जानना चाहती हूँ कि जब नेशन बिल्डिंग की बात आती है तो जो इंजीनियर्स हैं वो कितना रोल प्ले करते हैं? बहुत। इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, engineers I would say form, if I dare say, the backbone of nation building. Like from civil engineers to mechanical engineers to electrical engineers to computer science engineers, I would say nation building engineers play a leading role. For example, our IT industry, which is a $250 billion industry right now, forms pretty much the backbone of our white collar economy. And other than that, you have engineers who go into a lot of other streams as well, where the engineering curriculum helps helps hone the skill set required to excel in those fields. You have engineers to build our infrastructure, and needless to say, in a country like India, having solid infrastructure is absolutely fundamental to economic growth and our prosperity as a country. Or otherwise, we are a developing country which is trying to build a large economy as fast as possible. So, isme heavy industry and all is extremely necessary. So, I would say engineers play a leading role in nation building. शौर्य, आपके साथ आपके साथी जयंत हैं, उनकी आपकी इस इनोवेशन में क्या भूमिका रही? आप दोनों मिले कैसे? हम दोनों मिले हमारे फर्स्ट ईयर में. We were both into robotics, drones and stuff, and we bonded over the love for robotics, over the love for electronics and making projects. So हम लोग साथ में पहले फर्स्ट ईयर में ही हम बिट्स पिलानी का डिफेंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी स्थापन किए थे, विद्रोही सिस्टम्स,
And after that, we co-founded Team Apollyon together, which was the BITS drone racing team. And that's where we borrowed the name Apollyon Dynamics from. So Jayant is also very, very good with electronics, robotics and all. He is a very competent innovator. And he has a lot more entrepreneurial experience than me. Like while I was, doing research into drones and stuff and mainly fixating on things that fly, Jayant was working on stuff like designing his own alternative to the Arduino development board, working in startups, building his own startups. So he is more on the business side while I am more on the tech side. तो एक बात बताइए, जब आप लोग ये सोच रहे थे कि आपको कुछ ऐसा बनाना है जो देश के लिए भी काम आए, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बोला कि सुरक्षा को लेकर, सेफ्टी को लेकर आपका मोटिव था, और जब आपका ये ड्रोन बन गया, प्रेरणा क्या थी, मोटिवेशन कहाँ से आपको लगा कि आपको ये करना ही है? और आजकल तो वैसे भी इतने लोग लगे हुए हैं इसमें, तो क्या कुछ चुनौतियाँ भी कुछ आई थी आपके सामने? Yes. So basically, my favorite vacation ever was in Kashmir, and in particular, Pahalgam, where I really loved that place. Back when I went, things seemed very peaceful, and then precisely a year from my vacation, the Pahalgam attack happened, and when I looked through the photos, I saw that the exact spot where I had my favorite pictures there taken was the spot where the attack had happened, and that strengthened my resolve to do something for the country, to ensure that this kind of thing can never happen again, to at least contribute in some way to helping the security of the nation. सेनाओं में जाने के लिए ही उपयोग किया था आपने इस खोज को, या फिर किसी और सिविल रेस्क्यू के लिए कोई विचार भी आपका आया? I intend to build drones for like both purposes, like dual use drones. जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू वगैरह के लिए भी हमारा ड्रोन्स यूज किया जा सकते हैं, वैसा ड्रोन्स भी हम बना रहे हैं, लेकिन प्राइमरीली डिफेंस के लिए बना रहे हैं। फिर कैसे पता चला आपके इस ड्रोन के बारे में? क्या आपने कहीं पे प्रेजेंटेशन दिया? कैसे सेनाओं को, आर्म्स को कैसे पता चला कि ऐसे दो नव प्रवर्तक हैं, एंटरप्रेन्योर हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं? हम लोग बहुत सारे कोल्ड मेल्स किए, कोल्ड मेल्स एंड कोल्ड कॉल्स। वो कोल्ड मेल्स के थ्रू से इवेंचुअली हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन का अपॉर्चुनिटी आया, और उस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद हमारे पास बहुत रेफरल्स आए। कैसा मोमेंट था वो जब आपको फर्स्ट पता चला कि ऐसे कुछ अप्रोचेबल हुआ है अब आपके लिए? तो दोनों ने कैसा फील किया, जयंत ने और आपने? वी फेल्ट वेरी गुड कि हम लोगों को लगा कि फाइनली एक अपॉर्चुनिटी हमको मिला है जिसमें हम एक्चुअली हमारे ड्रोन्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सके, और इट वाज वेरी मोटिवेटिंग फॉर द बोथ। शौर्य, बहुत लोग यहाँ पर ये समझना चाहते हैं कि आखिर जो ड्रोन है वो क्या होता है, फिक्स विंग क्या होती है, रेंज क्या है, स्पीड क्या है। बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो कि आम लोगों को पता नहीं होते। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में लोगों को ड्रोन का काम थोड़ा समझाएं और अपना भी समझाएं कि आप क्या करते हैं। ठीक है। सो हमारा ड्रोन्स बेसिकली मल्टीपल तरीके के होते हैं। जैसे कि होते हैं हमारे जो ट्रेनर्स, जिसपे लाइक सोल्जर कैन लर्न कि कैसे ड्रोन उड़ाना होता है। वो बेसिक्स, वो बहुत टफ होता है, क्रैशेस नहीं पाता है, और वो उड़ाना काफी आसान होता है। उसके बाद हमारे पास मल्टी रोल ड्रोन्स वगैरह होते हैं, जिसपे आप बहुत कुछ टाइप्स के कैमरा, नाइट विजन वगैरह, लाइक कोई बॉम्ब वगैरह ड्रॉप करने का डिवाइस लगा सकते हैं। और हम बड़ा ड्रोन्स भी बनाते हैं जो खुद को उड़ा सकता है, जैसे कि ऑटोनॉमस बोलते हैं। और फिक्स्ड विंग होता है, जैसे कि प्लेन टाइप का ड्रोन। जैसे कि बहुत सारे ड्रोन्स होते हैं जो प्लेन की तरह दिखता है, लाइक क्वाडकॉप्टर की तरह नहीं, तो इसको हम फिक्स्ड विंग बोलते हैं। तो ये जो ड्रोन होते हैं, क्या इनको उड़ाने के लिए भी कुछ अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है? क्या इसके लिए भी कोई कोर्स होता है? हाँ, यूजुअली हम ट्रेनिंग दे देते हैं, लेकिन अभी हम जो ड्रोन्स नया बना रहे हैं, जो हम डिजाइन कर रहे हैं, ऐसी तरह के ड्रोन्स हम डिजाइन कर रहे हैं जिसको उड़ाना बहुत आसान हो, जैसे कि वो डायरेक्टली डिप्लॉयड हो सके। ये हमारा अभी स्ट्रेटेजी है, so that it can be more approachable to fly for the vast majority of soldiers. जी, that is all. जी। शौर्य, रडार क्या होता है? जैसे अभी हमने जिक्र किया कि आपका जो ये ड्रोन है रडार पे भी नहीं आता। बेसिकली रेडार होता है एक इंस्ट्रूमेंट जो रेडियो सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करता है बहुत दूरी पे, और अगर सामने कोई ड्रोन या प्लेन कुछ हो, उससे बाउंस करके वापस आता है, और ये रेडार रिसीव करता है वो सिग्नल, और ये सिग्नल पढ़कर
रेडार बोल सकता है कि कहाँ पे कोई ड्रोन, हेलीकॉप्टर, प्लेन कुछ है या नहीं। और हमारा ड्रोन, स्पेशली द कामिकाज़े ड्रोन, ऐसा डिजाइन है कि उसका सरफेसेस बहुत कर्व जैसा है और उसका साइज भी छोटा है और उसका स्पीड भी बहुत ज्यादा है। इसमें रेडार का सिग्नल्स अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं होता और उसका रेडार क्रॉस सेक्शन, मतलब रेडार पे जो सिग्नेचर आ रहा है वो बहुत छोटी सी होता है और इसलिए द ड्रोन इज डिफिकल्ट टू स्पॉट ऑन रेडार। कामिकाज़े कैसे नाम दिया आपने, मतलब इसके पीछे भी क्या कोई आइडिया है? कामिकाज़े मतलब जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 में कामिकाज़े स्ट्राइक्स होते थे कि जापानीज पायलट्स यूज्ड टू fly their planes directly into their enemy ships. So ऐसे ही वैसे ही टर्म ओरिजिनेट हुआ। इस तरह का ड्रोन्स बहुत रशिया यूक्रेन वॉर में भी यूज होते हैं। तो कामिकाज़े ड्रोन्स आर बेसिकली ड्रोन्स दैट कैरी द पेलोड एंड डू अ वन वे ट्रिप। They don't drop the payload and come back. They themselves are the bomb. Oh. It's more like a missile than a conventional drone. ओके तो क्या कभी ऐसा भी हुआ कि जब आप इसको ट्रायल कर रहे थे, कोई ऐसी सेफ्टी पर्पस, फेल सेफ कैसे संभालते हैं, अगर नियंत्रण खो जाए तो क्या करता है, व्यवहार क्या करता है, ड्रोन क्या करता है अगर उस पे वो नियंत्रण ही खो जाए तो? Usually drones like this have a certain feature called return to home, जैसे वो जेंटली वापस आके लैंड कर जाएगा। हमारा कामिकाज़े ड्रोन अभी तक हम मेनली ड्राई रन से किए हैं कि लेकिन जो एक्सप्लोसिव से हम टेस्ट किए हैं वो हमारा मल्टी रोल ड्रोन से किया है कि एक एक्सप्लोसिव पेलोड लेकर जाके ड्रॉप करने का। तो ये जो आपका सफ़र है ये आपके कॉलेज के एक हॉस्टल रूम से शुरू हुआ और अब जो आपकी दुनिया है, मतलब अभी आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, अभी क्या करना बाकी है? अभी हमारा प्लान है कि बहुत एडवांस सिस्टम्स डिजाइन करने का और बनाने का जो हम आर्मी को दे सकते हैं। बहुत ज्यादा फीचर्स भी होंगे उस पे, बहुत ज्यादा वेट भी उठा पाएंगे वैसा ड्रोन्स और बहुत देर तक उड़ पाएगा। तो वैसे ड्रोन्स के लिए हम अपना टीम को बड़ा कर रहे हैं। हम बहुत वी आर टेकिंग इन वेरी वेरी क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट पीपल विद एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। फॉर एग्जांपल करंटली हम वी आर वर्किंग विद अ चीफ इंजीनियर फ्रॉम लॉकहीड मार्टिन हु इज आवर एडवाइजर। सो ऐसे हम प्लान कर रहे हैं कि ऐसे सिस्टम्स डिजाइन करें कि वो उड़ाना भी आसान हो और वो लाइक आर्मी के लिए, आर्मी का पर्पस बहुत अच्छे से फिट करे। अच्छा, बहुत सारे लोग शौर्य इस चीज़ को लेकर सोचते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसका कोई मिसयूज ना हो जाए, तो मिसयूज की भी संभावनाएं रहती हैं क्या? आप इस पर क्या कहते हैं? हम लोग बहुत केयरफुल हैं अबाउट whom we sell to. Like we do not intend to sell it to players outside the Indian military or maybe at some point in the future to friendly countries. So misuse हम prevent करेंगे at the source itself. We trust our military forces to use these drones for the right reasons and we are very careful to whom we sell these drones to. तो जब आपने ड्रोन सेल कर ही दिया तो क्या फिर पूरा जो चार्ज है वो उसके ओनर के हैंड्स में रहता है, फिर वो उसे कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, after selling it is the responsibility of the base who purchased it, but we help them with troubleshooting अगर कोई issue arise करे। तो अभी जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो शुरू कर रहे हैं स्टार्टअप हार्डवेयर, जो भी लोग हैं, जो युवा हैं, इसको चलाना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप उनको क्या एक सुझाव देते हैं अपने एक्सपीरियंस से? बिकॉज यू आर ऑल्सो वेरी यंग, तो आपको अब तक जो भी कुछ मिला उससे आप क्या कहेंगे? I would say कि like try to make the best of your passion. Like see कहाँ पे opportunity है, see कहाँ पे passion और opportunity align कर रहा है. Do something जिसमें you can find a cause. Because at the end of the day you need a strong motivation to drive you forward, which is not just money. तो वो cause के पीछे to do something for it. अभी इंडिया में बहुत opportunities है, जैसे कि like well outside the conventional rat race. क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी मिलते हैं फॉर डूइंग स्टार्टअप्स इन अ वैरायटी ऑफ प्लेसेस, नॉट जस्ट इन सॉफ्टवेयर. तो आई वुड से टू मेक समथिंग आउट ऑफ योर पैशन. तो आपका पैशन ड्रोन बनाना ही था? हाँ, ड्रोन्स एंड मशीन्स इन जनरल, स्पेशली मशीन्स दैट फ्लाई. हमेशा एक पिक्चर माइंड में आती है इंजीनियरिंग की पढ़ाई को लेकर. क्या आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा रहा जो बड़ा इंटरेस्टिंग था ड्यूरिंग दिस पीरियड? तो आप अगर वो शेयर करना चाहें. बिट्स में एटमॉस बोलकर एक फेस्ट होता है जहाँ पे बहुत सारे टाइप्स की इवेंट्स होते हैं. वन ऑफ दोज इवेंट्स इज द ड्रोन रेसिंग लीग. और मैं जब फर्स्ट ईयर में था, आई सॉ ड्रोन रेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. और वहाँ उस टाइम पे ही आई रिजॉर्ट टू गेट इनटू प्रॉपर एफपीवी ड्रोन्स, जो कि
एक टाइप का ड्रोन्स होते हैं जो 150-200 किलोमीटर स्पीड पे उड़ते हैं और गेट्स के अंदर से मैन्यूवर करते हैं, बेसिकली लाइक F1 रेसिंग बट विद ड्रोन्स. सो दैट वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मोमेंट्स ऑफ माय कॉलेज. खाली टाइम मिलता है तो क्या करते हो? कोई और हॉबी है क्या मशीन बनाने के अलावा? मैं ओकेजनली गिटार बजाता हूँ या जिम जाता हूँ इन खाली टाइम, बट अभी तो लाइक आजकल ज्यादा खाली टाइम नहीं मिलता मुझसे. जी, आपका बहुत बड़ा रोल है आपके लिए। लोगों का जो नज़रिया है, जब आपने ये काम किया तो आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, अचानक से सुर्खियों में आ गए। कैसे सिचुएशन को हैंडल किया उस वक्त जब लोग मिलते थे तो किस तरह के रिएक्शंस मिलते थे? People often had, were very, like, in a way you can say awed by the news and all. But for us it did not feel very different because most of the time हम लोग either bases पे deployed रहते थे demonstrations वगैरह के लिए, या हम लैब में थे काम करने के लिए, नया ड्रोन्स बनाने के लिए. So it did not feel very different for us. घर परिवार के लोगों का कुछ रिएक्शन जब उनको पता लगा कि हमारे बच्चों ने ये कर दिया है और सेफ्टी पर्पस देश के लिए? हाँ, they were very proud. तो शौर्य, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आप जैसे और भी युवा आएँ और देश के लिए सेफ्टी पर्पस हो या किसी भी फील्ड में आगे ले जाना हो। आप क्या कहेंगे, एक अंतिम जो मैसेज है हमारे सभी लिसनर्स के लिए नेशन में अपनी अपनी भूमिका के बारे में कि कैसे हम नेशन को डेवलप कर सकते हैं, भले ही आप किसी फील्ड में हो, क्या कहेंगे? Make something out of your passion to do something for the nation. Like, do not just fixate on what everyone else is doing. Do not just go by what society tells you to do. Because हमारा देश में एक issue ये है कि everybody wants to follow the same rat race and abide by the norms of society. तो do something different and make the best of it. बहुत opportunities है, go grab the opportunities. That's what I will say. शौर्य, आपको और जयंत को आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपना समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। दोस्तों, आज आपने अपने अतिथि कार्यक्रम में जाना कि कैसे कामिकाजे जैसे अनोखी तकनीकी पहल के पीछे छिपे हुए युवाओं का जुनून, मेहनत और सपनों को साकार करने का जज्बा छिपा है। शौर्य चौधरी ने हमें बताया कि जब लगन और दृष्टि साफ हो तो नई राहें अपने आप खुलती चली जाती हैं। हम आशा करते हैं कि आज की बातचीत से आपको भी प्रेरणा मिली होगी और अपने विचारों को हकीकत में बदलने के लिए एक साहस और निरंतर प्रयास कितना जरूरी है, इस पर आप आज से ही सोचना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए अतिथि के साथ। तब तक सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।